Hi students, good morning. Today continuing chapter number 18, that is price rise and consumer awareness part 3. In this topic we are going to see about the duties of the consumer. So let's proceed. इसके पहले टॉपिक में हमने राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स देखे थे, हाउ द कंज्यूमर्स आर बीइंग चीटेड, तो वो भी हमने टॉपिक देखा था. एंड नाउ ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर, के कंज्यूमर की ड्यूटीज़ क्या हैं. कंज्यूमर को खुद भी थोड़ा अवेयरनेस दिखाना चाहिए. तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. As the consumers are cautious about their rights, in the same way, they should also reflect this towards their responsibility or duties also. तो कौन कौन सी ड्यूटीज कंज्यूमर्स की है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट, while purchasing a commodity or the services, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कंज्यूमर शुड मेक द करेक्ट चॉइस. उसको खुद को पता होना चाहिए कि क्या खरीद रहा है. At the time of purchasing the product, consumer should purchase the product having good quality, reasonable price, guarantee और warranty, after sale service. सब कुछ उसको खुद को पहले इंक्वायर करना पड़ता है. He should purchase good having standards like BSI, ISI और EGMARK. इन सभी मार्क्स के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में. While purchasing electrical or electronic gadgets, priority should be given to purchase of the standard or branded items only. इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है खास करके अच्छी क्वालिटी की हमको चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वायर्स वगैरह जो होते हैं, तो जो सर्किट्स होती है वो अच्छी क्वालिटी की होगी तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा. और अगर ख़राब या तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी तो वो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है या उसका माल फंक्शन हो सकता है. At the time of purchasing a product from many products, choices has to be made. While choosing the product, they should have all information. They should check the label and the information given in the advertisement and ensures themselves like a discreet and aware consumer. खुद ही consumer को ये सब पता करना पड़ता है. As a consumer, his decision and behavior should be wise, intelligent, calculative, and bearing some common sense, so that he may be protected against exploitation and cheating. तो अगर वो खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर सेंस यूज़ करेगा तो डेफिनेटली कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बच सकता है. It is the duty of the consumer that his conduct or behavior towards the seller or the producer should be gentle and bona fide. यानी good behavior होना चाहिए. A consumer should insist on having the original bill or the original receipt of the item or the services purchased by him. He should also insist on getting warranty card filled. बहुत बार ऐसा होता है वारंटी कार्ड अंदर होता है बट वो फिल नहीं करवाता है. तो इसमें कैसा होता है, जब कभी बाई चांस चीज़ें ख़राब होती है हम लोग वो खाली कार्ड लेके चले जाते हैं तो बोले कि कब ये भरवाया था हमको तो पता ही नहीं है. ऐसा सिग्नेचर ऑफ द सेलर शुड बी देयर अलॉन्ग विद द स्टैम्प. तो ये सारी चीज़ें हमको जानकारी रखनी चाहिए. Consumers should come together and form voluntary consumer organization and association at non-political and non-commercial level, and with the help of these organizations they should be ready to give legal fight for the solution of problems related to consumers complaint. They should ask for the representation in different government committees related to consumers. So it is also the duty of the consumer that he should fight against exploitation. तो हमारे लिए कोई और तब लड़ेगा जब हम खुद के लिए लड़ने के लिए रेडी रहेंगे. Consumer should make verbal or written complaint to the officer of the related department without fail. जो भी कंप्लेंट हम करें तो हमको लिख के करनी चाहिए या तो उसको बोल के करनी चाहिए. They should also take cooperation of the consumer organization and different non-profitable institution, यानी NGOs होती है ना वैसी institution, in order to prevent or eliminate complaint related to the wide interest of the consumers. While purchasing product, consumers should not make any compromise with quality of the product or its safety. Quality अच्छी ही हमको खरीदनी चाहिए. फिर एक बार अगर आप खुद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें खरीदोगे फिर वो ख़राब होगी, चाइना का माल खरीदोगे तो ऐसा ही होगा, फिर वो ख़राब होने ही वाला है. He should always insist on purchasing a product after checking packaging, rate, date of manufacture, batch number, weight, expiry date, name of the producer, address, etc. While purchasing a product, if the consumer finds that the product is adulterated or duplicate or fake or find decrease in the weight, he should immediately bring it to the notice of the trader. वो ट्रेडर को तुरंत के तुरंत उसी जगह पे बताना चाहिए कि भाई आपने ये 500 ग्राम का लेबल है बट इसको जब मेज़र कर रहे हैं तो इसमें 470 ग्राम जैसा ही दिख रहा है, तो आपको तुरंत ही बताना चाहिए. And if the trader delays in bringing the solution, then he should give an application to the authorities or the consumer court asking for redressal. Redressal यानी कि मुआवजा, compensation. Thus consumer should perform his duty as a responsible citizen. तो कंज्यूमर की गलतियां भी होती है, इसलिए कंज्यूमर की ड्यूटीज़ ये खुद को पहले देखना चाहिए. सब ब्लेम ट्रेडर्स के ऊपर नहीं डालना चाहिए. हमको आंख बंद करके कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी होती है.
कंज्यूमर शुड परचेज द प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड नंबर ओनली, भर भर के खरीदने का नहीं. He should save himself from purchasing unwanted and unnecessary product by getting attracted from the advertisement or by seeing others or from sale. दूसरे खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूँ, ऐसा नहीं होता है. खुद को अगर ज़रूरत है तो ही खरीदो और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना ही खरीदो. He should not waste money. While purchasing, weighing scale जिसमें measurement होता है, implement of the measures, electronic instrument must be checked whether they are correct or not. A consumer should make sure whether the tools of the measurement have been tested and verified by the investigation officer or not. टाइम टू टाइम जो वेइंग मशीन्स वगैरह होते हैं ना बड़ी बड़ी शॉप्स पे, तो वो वेट एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले टाइम टू टाइम उसको चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई ये वेइंग इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है. तो वो हमको देखना चाहिए कि भाई सही है कि नहीं है. If tools have been not been certified every year, the consumer should bring it to the notice of the weight and measurement officer or director of the legal metrology and consumer affairs at the local level, and if required, he should complain. तो सपोज कि कोई पर्टिकुलर शॉप है, वहाँ आप देखते हो कि वेइंग स्केल ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आपको पहले तो दुकानदार को ही बताओ कि भाई ऐसा ऐसा फॉल्टी दिख रहा है. अगर वो नहीं सुनता है आपकी, तो आपको इनमें से वेट एंड मेजरमेंट ऑफिसर या तो डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी या तो कंज्यूमर अफेयर में आप कंप्लेंट कर सकते हो. दिस इज द ड्यूटी ऑफ विजिलेंट यानी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर. द सील ऑफ द गैस सिलेंडर शुड ऑलवेज बी चेक. गैस सिलेंडर जो होते हैं उसके पास सील होता है, वो सील बराबर इंटैक्ट है कि नहीं वो आपको देखना होता है, वेदर इट इज इंटैक्ट और नॉट. टैक्सी और रिक्शा शुड बी बोर्डेड ओनली आफ्टर चेकिंग जीरो रीडिंग इन द मीटर. वी शुड पे एज पर द रेट ऑफ द मीटर ओनली. पेट्रोल डीजल CNG शुड बी फील्ड आफ्टर चेकिंग द इंडिकेटर है 0000. आपको पेट्रोल पंप पे भी बोलेगा ही वो. While purchasing kerosene खरीदते वक्त खास, one should insist on purchasing after the foam in the measuring can has settled down completely. देखो केरोसिन जब डालते हैं तो सोडा की तरह उसमें भी फोम निकलता है, वो झाग निकलता है. तो झाग जब तक पूरी तरह से बैठ नहीं जाता, क्योंकि उसका जो वेइंग जो डब्बा होता है ना वो 5 लीटर 2 लीटर ऐसा होता है. तो अगर वो ऊपर से थोड़ा डालेगा ना, पोर करेगा ना केरोसिन, तो फोम आ जाएगा. ऊपर तक फोम भर गया इसका मतलब ये नहीं है केरोसिन भर गया. फोम को नीचे सेटल होने देने का, और कंप्लीट जो लिक्विड जो केरोसिन जब तक भर नहीं जाता तब तक आपको वहाँ से लेना नहीं है. वेइंग शुड बी डन ऑन द स्केल ओनली विच इज़ हंग ऑन इट्स स्टैंड. वो हाथ में तराजू लेके पहले तोलते थे ना, तो उसमें नहीं करवाना चाहिए. व्हेन स्केल इज हेल्ड इन द हैंड देयर इज द चांसेस ऑफ चीटिंग. तो हाथ वाला नहीं करना चाहिए. A consumer should either himself or go to the consumer forum or should complain through consumer society against the negligence in the improvement of the railway, bank, insurance, telephone or hospital services, or for the compensation for physical, mental or economic harm due to lack of services. किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ अगर कंज्यूमर को होती है तो या तो खुद जाना चाहिए उसको, या तो इन फॉरम्स या कंप्लेन जहाँ से होता है वहाँ से करवाना चाहिए. Consumer should give details of the news of the judgment and compensation review on the local TV channels and get it published in the newspaper. जो भी सपोज के कंप्लेन कोई कर रहा है कंज्यूमर, और जो भी उसका जजमेंट आया तो वो लोकल न्यूज़पेपर में या तो टेलीविज़न पे उसको करवाना चाहिए न्यूज़ मीडियम्स के थ्रू, ताकि दूसरे लोग चीटिंग से बच सके. So that the other consumer may know about the injustice done to him. By informing about the judgment, they may be prevented from getting victimized. Thus, it is also his responsibility to bring consumer awareness and work for the consumer education, participate. Consumers should practice in enthusiastically in different consumer awareness program, movement arranged by the consumer society, discussions or seminars. Thus, try to give a thrust यानी boost to the movement of consumer protection in the society. So, ये कुछ ड्यूटीज़ है जो कंज्यूमर्स को खुद को समझनी है और खुद को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करनी है. Now measures of the consumer protection, very important. Following 4 types of measures have been undertaken for consumer protection. क्या क्या कंज्यूमर कर सकता है और किस लेवल पे कंज्यूमर कर सकता है, तो वो हम देखेंगे. 3 टायर, TIER, ये TYRE नहीं है. 3 टायर यानी कि ये रेलवे कोचेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये लेवल होता है. टायर यानी कि लेवल. 3 ट्रायल यानी कि ट्राइब्यूनल कोर्ट्स. अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, नेशनल कंज्यूमर काउंसिल कमीशन हैज़ बीन सेटअप. वेरी इंपॉर्टेंट. किसने नेशनल कंज्यूमर कमीशन सेटअप किया, तो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने किया ये ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, स्टेट
Consumer Protection Forum has been set up by the state level. Under this commission, laws for the consumer protection are framed. National Consumer Disputes Commission has created the structure of 3-tier court and formed norms यानी कि laws for the action of the Consumer Protection Forum और Commission. तो कौन कौन से किस लेवल पे, तो उसके बारे में हम देखते हैं. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. जनरली there is one court in every district which is very important court. It studies the complaint of the consumer and give compensation in the consumer against losses. Approximately 571 consumer district courts are working in our country. India में 571 ऐसी courts हैं. In these courts, presently claims for compensation up to 20 lakhs are filed after paying decided fee. एक nominal fee होती है. Suppose कि मैं consumer हूँ, मुझे किसी तरह का लॉस फेस हुआ है किसी ट्रेडर के अगेंस्ट, तो मैं कंप्लेन करता हूँ. मुझे एक नॉमिनल सी फीस कुछ पे करनी होती है, 1000-2000 जैसा जो भी होता है, और कितने लाख तक का मैं कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता हूँ, तो 20 lakhs तक का. अगर 20 लाख के अंदर मुझे किसी चीज़ का नुकसान, सपोज 6 लाख का मैंने कोई माल खरीदा है और वो चीज़ अगर कुछ फॉल्टी हो गया या मुझे कंप्लेन करनी है, तो वो 20 लाख के अंदर की रेंज में आता है और मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में वहाँ पे कंप्लेन कर सकता हूँ. इफ़ द पिटिशनर यानी कि जो कंप्लेनर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसीजन देता है ये कोर्ट, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, ही में फाइल अ कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर की कमीशन में, विद इन नेक्स्ट 30 days. तो अगले 30 दिनों के अंदर अंदर उसको स्टेट में, जैसे कि कोर्ट्स कैसा होता है बच्चों, कि स्टेट सिटी कोर्ट होता है, देन स्टेट कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होता तो सुप्रीम में. वैसे ही यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट फोरम, देन स्टेट फोरम एंड देन नेशनल. बट बिफोर दैट ही हैज़ टू पे इधर 50% अमाउंट ऑफ द कॉम्पेंसेशन क्लेम और 25,000 विच एवर इज लेस. अब देखो, आप खुद ही सोचो, सपोज 6 लाख का मेरा कुछ सामान का लॉस हुआ है, तो मैं कंप्लेन करूँगा, तो या तो 50% मुझे देना है 6 लाख का 50% यानी 3 lakhs, या तो 25,000 विच एवर इज लेस, यानी कि 25,000 मुझे पे करना पड़ेगा नेक्स्ट, यानी स्टेट लेवल में अप्लाई करने के लिए. 6 लाख का है तो 3 लाख मुझे नहीं करना है, 6 लाख का आधा 3 लाख, या तो 25,000, इन दोनों में से कोई कम है. तो अब सपोज मेरा अगर 40,000 का मेरा कॉम्पेंसेशन है, तो 40,000 का कॉम्पेंसेशन है, तो मुझे उसका आधा यानी 20,000 ही पे करना रहेगा, तो मैं स्टेट लेवल पे अप्लाई कर सकता हूँ. बट आप खुद सोचो, इतने अमाउंट के लिए कोई भी कंप्लेंट करेगा नहीं. अगर बड़े बड़े अमाउंट है तो ये कंप्लेंट इस तरह से करते हैं. ठीक है. अब सेकंड है स्टेट कमीशन, यानी स्टेट फोरम में क्या होता है, तो थोड़ा उससे बढ़कर है. अप्रॉक्सीमेटली 35 स्टेट फोरम्स आर वर्किंग प्रेजेंटली, 35. इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम्स ऑफ फ्रॉम 20 lakhs to 1 crore, 20 लाख से 1 करोड़ तक के केसेस यहाँ पे फाइल होते हैं आफ्टर पेइंग डिसाइडेड फी. If the petitioner is again not satisfied with the decision of the state commission, he may file a complaint in the national commission within next 30 days, although he has to pay either 50% of the compensation claim or 35,000 whichever is less. तो अब यहाँ अगर उसको बड़ा अमाउंट है नेशनल लेवल पे, यानी 20 से 1 करोड़ का अगर कोई उसको लॉस सफ़र हुआ, वो कंप्लेन कर रहा है, तो उसको कम से कम 35,000 या तो जो भी उसका केस है उसके आधे पर 50% उसको पे करके वो नेशनल लेवल पे कंज्यूमर एक्ट में कंप्लेन कर सकता है. Now consumer level commission, national forum, compensation claim above 1 crore, 1 करोड़ से ऊपर का अगर कोई क्लेम हो तो डायरेक्ट यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं बाय पेइंग द डिसाइडेड फी. दिस कमीशन इज अ बेंच ऑफ 5 मेंबर, यहाँ 5 मेंबर की कमीशन होती है. स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन शुड गिव द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 90 days ऑफ द फाइलिंग ऑफ द केस. 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर अंदर केस का निकाल हो जाना चाहिए. If the petitioner is not satisfied with the decision of the National Commission, he may file a case in the Supreme Court within next 30 days. Supreme Court में इस पे आ जाता है. But before appealing it to compulsory deposit of 50% of the compensation or 50,000 whichever is less. इसमें 50,000 जितना या तो 50% जो अमाउंट होता है उसका पे करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले. If the person does not comply the order given by any court, he could be given punishment or penalty or the both. अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसका केस को रिजेक्ट करती है तो उस कंज्यूमर को ही पनिशमेंट हो सकती है या पेनल्टी हो सकती है, क्योंकि हर एक कोर्ट तो गलत नहीं होगी ना. ऐसा
पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, सीनियर सिटीजन एंड हैंडीकैप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फी। ये जो नॉमिनल फ़ी पे करनी होती है ना, तो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के बिलो जो लोग होते हैं वो या तो सीनियर सिटीजन होते हैं या तो हैंडीकैप होते हैं, उनको ऐसी फ़ी कोई भी पे नहीं करनी होती किसी भी कोर्ट में अपील करने से पहले, अंडर सर्टन कंडीशन। दे आर प्रोवाइडेड फ्री सर्विस अंडर डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस के अंडर, गाइडेंस ऑफ लीगल एड एंड एडवोकेट। सेकंड है कंज्यूमर सोसाइटी, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एज पर दिस एक्ट, द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंज्यूमर सोसाइटी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। द कंज्यूमर सोसाइटी एंड काउंसिल्स आर नॉन पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में नहीं आती, नॉन कमर्शियल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स ने खुद मिलकर बनाई होती है। The main objective of these consumer society is to bring awareness about the consumer right and encourage them to help government to frame policies and to protect them from time to time. ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है गवर्नमेंट को हेल्प करती है नए नए रूल्स बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में किसी कंज्यूमर के साथ किसी तरह की चीटिंग ना हो। It keeps on reviewing the provisions for the consumer rights and acts. It also gives suggestion to the government regarding the need to change the legislative provisions. This consumer society provides consumer education through consumer awareness programs, which provide guidance on the main subjects like rights of the consumer, duties of the consumer, exploitation of the consumer in different way, and how to save from exploitation. These consumer society are organized, publish monthlies, यानी कि न्यूज़पेपर मैगजीन्स छापते हैं, मंथलीज, बाई मंथली यानी मंथ में 2 बार आती है वो मैगजीन्स, एंड पीरियोडिकल्स लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता ही है, ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच एक्सेट्रा आर ट्राइंग टू ब्रिंग अवेयरनेस। तो ये सब कैसा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल, बुकलेट, इन सब से लोगों को पता चलता रहता है कि कौन कौन से हमारे राइट्स है, ड्यूटीज़ है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको क्या करना चाहिए। दीज आर हेल्पफुल इन एलिमिनेशन ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव। Under PDS system, essential commodities of the good quality are provided in the fixed quantity at subsidized It's 21 rates hours. to the poor at the regular interval from fair price shop. हर मंथली कुछ फिक्स अमाउंट होता है। हमने देखा ये 17 चैप्टर में कि कितना 35 किलो अंत्योदय फैमिलीज़ को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो बीपीएल के बिलो होते हैं उनको पर मंथ 5 kg 10 kg ऐसा पर्टिकुलर एक अमाउंट मिलता है, और सब्सिडाइज यानी कम से कम प्राइस पे मिलता है उनको। Thus, the poor consumer is saved from the exploitation in the open market, where they can purchase good at the high rate of low quality and less weight. तो जहाँ उनको ये सब क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो इन फेयर प्राइस शॉप से, एफपीएस शॉप से उनको काफ़ी अच्छे दामों में, सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल्स करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर्स। तो जो ट्रेडर लूट मचा के रखे हुए तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में और काफ़ी अच्छी प्रोविजंस करके मिलती है। डी, सिस्टम्स सर्टिफाइंग वेट एंड मेजर्स ऑफ प्योरिटी ऑफ गुड्स। अब सिस्टम्स गवर्नमेंट ने बनाई है जिससे क्वालिटी मेंटेन हो, जिससे वेट मेंटेन हो, और सर्टिफाइड करती है प्रोडक्ट्स को। तो कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर, government has set up many legal institute which perform task of checking quality, quantity, purity of the produced goods and certifies them. सपोज कि आज मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक होती है, उसका क्वांटिटी में जो दे रहा हूँ वो चेक होता है, और उसको सर्टिफिकेशन मिलता है यानी सर्टिफाइड है, फिर उसके बाद ही मैं उस चीज़ को बेच सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से समझना है, सिंबल्स आपको बराबर याद रखने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ISI, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, in 1947 to regulate quality. ISI मार्क, ये देख रहे हो ISI मार्क, बहुत सारी चीज़ों पे आपको ये ISI मार्क दिखेगा। नाउ सिंस 1986 के बाद ये लोगो चेंज हो गया है, नाउ इट इज़ नोन एज BIS। अब ये लोगो ऐसा हो गया है, BIS इस तरह का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द गुड्स दैट मीट द डिस्क्राइब स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी आर अलाउड टू यूज़ ISI मार्क। जो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के और कई सारे प्रोडक्ट को ये वाला जो मार्क है वही यूज़ करने के लिए दिया जाता है, ISI मार्क। कई सारे मेटालिक चीज़ें वगैरह होती है उनके ऊपर ये प्रोडक्ट मार्क होता ही है।
The agriculture product like forest product, horticulture and animal product are given the egg mark. ये देख रहे हो बच्चों, ये egg mark है, ये egg mark का लोग है, भारत सरकार, बीच में egg mark लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह का. It is implemented under agriculture product on of Act 1937. This scheme is run by the Directorate of Marketing and Intelligence DMI. Very important. ये स्कीम कौन चलाता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस DMI चलाता है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ग्रांट्स परमिशन टू द ट्रेडर टू यूज एग मार्क्स. कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं, मेज़ हो गया, वीट हो गया, फिर राइस हो गया, इन सारी चीज़ों की क्वालिटी एक होती है. वो क्वालिटी अगर अच्छी क्वालिटी की तभी जाके जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये एग मार्क का सिक्का अपने प्रोडक्ट पे लगवा सकते हैं और उसको बेच सकते हैं. If the consumer has any doubt regarding the quality of the mark, he can contact the regional office of BIS. तो जो रीजनल ऑफिस होती है, हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इसकी ऑफिस होती है, वहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो. इवन गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर गिवन BIS मार्क. गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर भी BIS मार्क होता है, ये देख रहे हो आप लोग, ये BIS मार्क है. Along with the purity number 916, ये देख रहे हो 916, which means quality and the purity of the gold is generated by certain parameters. अब ये 916 क्या है मैं आपको समझाता हूँ. These are BIS marks. गोल्ड नंबर 916 डिपिक्स 22 कैरेट गोल्ड. अब ये 916 का मतलब होता है 22 कैरेट गोल्ड. हमने साइंस में देखा है 24 कैरेट गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है, उससे ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते. ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो वो टूट जाएंगे. तो क्या करते हैं, 22 कैरेट्स गोल्ड बनाते हैं, यानी कि 92%, अप्रॉक्सीमेटली 91.6% गोल्ड होता है, एंड बाकी का जो परसेंटेज होता है यानी कि 8.7% जितना जो होता है तो वो कॉपर या तो सिल्वर यूज़ करते हैं ताकि वो ऑर्नामेंट थोड़ा हार्ड हो जाए. इसीलिए 24 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट नहीं बनाए जाते. तो 916 नंबर है, इसका मतलब वो 22 कैरेट गोल्ड है. हॉलमार्क लोगो होता है, is given by the central government which shows the year of hallmark. एग्जाम्पल J अगर लिखा हुआ है उसके ऊपर, which means ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग 2008. अगर J है तो 2008 में वो बनाया गया है, इस तरह से, समझे. साइन दैट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परचेजिंग गोल्ड ऑर्नामेंट. तो ये सारी चीज़ें आपको मार्क्स ध्यान में रखने अगर आप 22 कैरेट गोल्ड खरीद रहे तो. देन मार्क ऑफ FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट. FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर is used on jams, fruit juices, fruits और vegetable packed in tin वाले जो कंटेनर में जो होता है, तो उसके लिए ये FPO मार्क जो है वो यूज़ होता है. बराबर है, FPO मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है FPO मार्क. BIS allowed textile, chemical, insecticides, product of rubber, cement, electronic gadgets, etc. to use ISI mark. तो BIS टेक्सटाइल हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, इंसेक्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स हो, रबर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक हो, तो वो ISI मार्क, ये वाला जो ISI मार्क है तो ये वाला यूज़ करवा सकते हैं. ठीक है. वुल मार्क, जो चीज़ें वुल की बनी होते हैं, इट इज़ गिवन टू द वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस. ये वुल मार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा गया है बोर्ड में. MPO, मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइज़र. MPO ये मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइज़र. इट गिवन टू मीट, मटन एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम. नॉन वेज चीज़ें जो होती है वो इसमें ये प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, पैकेज में जो अवेलेबल होता है ना उसके लिए. HACCP, वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. इट इज़ गिवन टू प्रोसेस्ड फूड, चीज़ वगैरह जो होता है ना, जो प्रोसेस्ड होता है, HACCP प्रोडक्ट उसका लोगो है ये. इको, इट इज़ गिवन टू सोप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, कलर, केमिकल, पावर कोटिंग, then battery, cosmetic, goods used in the place of wood, leather and plastic product given by ISI, presently known as BIS. तो इको प्रोडक्ट होता है, इको प्रोडक्ट यानी कि इकोलॉजिकल फ्रेंडली प्रोडक्ट, ऐसा. तो ये सारे प्रोडक्ट के सिम्बॉल्स आपको याद रखने हैं, ISI, BIS, एगमार्क, BIS, ये सारे प्रोडक्ट आपको सिम्बॉलिक याद रखने हैं, एग्जाम में पूछते हैं. ये इको का लोगो है, समझ में आया ना. ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. अब इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी, हमने जो अभी तक देखी BIS ये सब, ये इंडिया लेवल पे. इंटरनेशनल लेवल पे कौन इनको ऑथोराइज करता है? 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग एट इंटरनेशनल लेवल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. फर्स्ट ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है. एस्टेब्लिश कब हुआ? 1947. Its main function is to provide certification of the standard
According to international standard, Series ISO 9000 is given for the environmental management system by international organization, which is the certification of officers and institution of high quality. 9000 से लेके 14000 तक का रेंज होता है, तो अच्छी क्वालिटी इसको मानी जाती है. आपने कई सारे प्रोडक्ट्स पे आईएसओ मार्किंग देखा होगा, यानी ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में. ठीक है. दूसरा है कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, CAC, कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन. दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट्स, खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसको सर्टिफाई करती है. इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर फूड, खाने के लिए. इन 1963 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश. CAC को किसने बनाया है? तो दो ऑर्गेनाइजेशन ने. कौन कौन सी? तो FAO एंड WHO ने मिलके CAC को बनाया है. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम, कैपिटल सिटी ऑफ इटली. Its main function is to develop food standards, guidelines and code for practice, for production and for international trade in the food products like milk products, meat, fish, etc. तो इंटरनेशनल लेवल के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको सर्टिफाइड करती है ये. द जॉब वर्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग ISO is done by BIS in India, while Director General Health Services contacts CAC. सपोज़ कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है या मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो इंडिया की तरफ से जो BIS को मैं सर्टिफिकेशन के लिए करूँगा और BIS कांटेक्ट करेगा ISO को सर्टिफाइड करने के लिए. हम नहीं अप्रोच कर सकते. BIS यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो लोग अप्रोच करेंगे ISO को फॉर द सर्टिफिकेशन. एंड सेम CAC को कौन करेगा? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस करेगा कॉन्टैक्ट CAC वालों को. ठीक है. नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेन. कंप्लेन कौन कर सकता है, कहाँ करनी है? अगर हम कंज्यूमर है, अगर हमको कंप्लेन करनी है तो कहाँ करनी है? पहला तो कंज्यूमर हिमसेल्फ, कंज्यूमर खुद कर सकता है. दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं. थर्ड कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज. फोर्थ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर ऑन द मैटर इन विच इट इज़ द इंटरेस्टेड टू ऑल कंज्यूमर. ये सब लोग. Any member of the family of the person who has purchased the product or the service with his permission may file a case if there is a shortage of material or services or may lodge a complaint against the loss. तो इतने लोग कंप्लेन कर सकते हैं खुद से. कंज्यूमर खुद कर सकता है, स्टेट, सेंट्रल या तो यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, कंज्यूमर सोसाइटी कर सकती है, रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ से जो होते हैं वो कर सकते हैं, या तो फैमिली का कोई भी मेम्बर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में कंप्लेन कर सकता है. If the producer or the trader neither finds a solution nor show preparedness to find a solution of the true, correct and clear complaint, in that case, consumer or his family member may file a case in the local district forum, state commission or national commission. पहले तो ट्रेडर को इन्फॉर्म करो. अगर ट्रेडर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या तो नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो. दे मे कंप्लेन इन द सप्लाई कोर्ट, ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी दैट इज साइंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, और कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर सोसाइटी और कलेक्टर ऑफिस. तो इन सब जगहों में से कहीं पे भी कंप्लेन कर सकते हैं. द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट if the item or the service is faulty or deficient or is not in the accordance with the agreement of prevailing law. Thus, consumer will file a complaint against the deficiency in quality, type and purity of the goods, less weight, etc. तो हमने जो जो चीज़ें देखी जो कंज्यूमर को देखनी चाहिए, और वो चीज़ें अगर वो ख़रीदता है बाद में उसको पता चलता है कि ये उस क्वालिटी के नहीं है तो वो कंप्लेंट कर सकता है. हाउ टू कंप्लेन. कंप्लेन कैसे करनी है? अ विक्टिम में फाइल अ कंप्लेंट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ईदर टाइप और हैंड रिटन और थ्रू ईमेल. इफ द विक्टिम गोज टू द कोर्ट देन थ्रू लॉयर, देन ही नीड्स अ एफिडेविट. ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एफिडेविट तैयार करवाना पड़ता है. नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी देयर इन द एप्लीकेशन. राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लेन एंड गिव रीज़न फॉर कंप्लेनिंग. हमको पूरा डिस्क्राइब करना है कि हम कंप्लेन क्यों कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं. एनक्लोज कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एक्यूजेशन, जैसे डॉक्यूमेंट की कॉपी हो गई, बिल हो गया, ये सब हमको देना है. नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस. ओरिजिनल कभी मत दो, जेरोक्स करा के दो. एनक्लोज बिल, रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा. इफ द पेमेंट हैज़ बीन डन बाय चेक देन अटैच द काउंटर और गिव डिटेल्स ऑफ द चेक.
एनक्लोज कॉपी ऑफ द कंडीशन मेंशन बाय द सेलर, कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट जो छपाए होते हैं, प्रोस्पेक्टस जो होते हैं, ब्रोशर्स होता है, ये सब हम लोग अटैच कर सकते हैं. कंप्लेंट में भी लॉज इन एनी कंज्यूमर फॉरम बाय सबमिटिंग अप्रोप्रिएट फी एज पर द अमाउंट ऑफ द कॉम्पेंसेशन क्लेम. एक नॉमिनल फ़ी होती है, वो फ़ी पे करना होता है हमको, एंड देन कंप्लेंट चल जाती है. कंज्यूमर में लॉज अ कंप्लेंट विद इन 2 years ऑफ इमरजेंस ऑफ द रीजन ऑफ द कंप्लेंट. 2 साल के अंदर अंदर वो कंप्लेंट कर सकता है. एनी कंज्यूमर में कॉल ऑन गुजरात स्टेट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-114-000 फॉर कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट एज वेल एज फॉर द स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉज एंड गाइडेंस. तो अगर हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसी तरह की सहायता चाहिए तो इन टोल फ्री नंबर गुजरात और नेशनल लेवल पे हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं या जानकारी हासिल कर सकते हैं. ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 18 एंड दैट वाज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस.